ओके चलो शुरू हो जाते हैं. Good morning, friends. Let us proceed ahead with the next chapter. We are done with the two chapters, cost sheet and material cost. We now proceed ahead with labor cost. So, wonderful chapter. Straight away, we head into the various adjustments to be done or calculations to be done. चलो शुरू करते हैं. First, what do I mean by labor cost? It is not just the wages that you pay to the worker. Like for a material, we said it is not just the purchase price, it is an all inclusive cost considering incidental elements also. आवाज थोड़ा सा बढ़ा. Hello. So, like material, labor also is not just the wages and salaries. It is in addition to the wages and salaries. There are multiple or basic wages. There are multiple elements. So, what are they? Basic wages and salary. Then you might give variety of allowances to your employees. You might pay for overtime. You might contribute to the social security schemes like provident fund or other welfare funds like employee state insurance, or you might have taken a term insurance on behalf of employees. You might have contributed to the health insurance benefit or mediclaim benefits for employees. So बच्चों, लेबर कॉस्ट का मतलब सिर्फ बेसिक वेजेस है क्या? नहीं. All inclusive cost that an employer bears on behalf of employees. So mediclaim benefits आ गया, सब कुछ आ गया. Other benefits, पेड लीव आप दे सकते हो, सब्सिडाइज फूड दे सकते हो, लीव ट्रैवल कंसेशन जो भी देना है यार. मतलब बेसिकली एलिमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट में क्या एक वर्ड याद रखना है? बोलो. All inclusive cost. That is what you need to remember. So in this chapter, we primarily talk about controlling labor cost. So this is important. Controlling labor cost does not mean reducing wages of the employees. क्या बोला? It does not mean reducing wages of employees. I am not talking about a reduction of wages. What I am talking about is a reduction in the labor cost per unit. So how do you achieve reduction in labor cost per unit? You might achieve reduction in labor cost by paying more salary. आप बोलेंगे हैं ज्यादा सैलरी पे के रिडक्शन, ये कहां से? मतलब कम पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स? हाँ पॉसिबल है अगर आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है तो. सो लेबर कॉस्ट कंट्रोल में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप टोटल लेबर कॉस्ट इन रुपीज, टोटल लेबर कॉस्ट इन रुपीज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी produced. This figure, which is called as what? This is called the labor cost per unit. ये labor cost per unit आपका क्या होना चाहिए? Decline होना चाहिए. Now, can it decline by increasing wages? Yes, it can. How? I motivate workers so that the efficiency of workers goes up. अगर efficiency बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? Quantity produce बढ़ेगा. अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ेगा ना तो क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट कम होगा. अब वो अचीव करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं और बहुत सारे एरियाज पे आपको काम करना है. कौन से एरिया? यू शुड असेस योर मैन पावर रिक्वायरमेंट. यू शुड नॉट हैव मोर एम्प्लॉइज देन व्हाट इज रिक्वायर्ड. अगर आपके फैक्ट्री में आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट ही असेस नहीं किया तो यू विल हैव अ हायर लेबर कॉस्ट. तो आपको क्या करना है? हर एक प्रोसेस पे कितने आदमी लगते हैं वो आइडेंटिफाई करो, प्रोसेस बाय प्रोसेस, और उससे क्या होगा? एक्सेस स्टाफिंग नहीं होगा या अंडर स्टाफिंग नहीं होगा. कीप अ कंट्रोल ओवर टाइम कीपिंग रिकॉर्ड एंड टाइम बुकिंग रिकॉर्ड. व्हाट इज अ टाइम कीपिंग रिकॉर्ड? व्हेन वर्कर्स एंटर द फैक्ट्री एंड लीव द फैक्ट्री, उसका टाइम रिकॉर्ड रखने के लिए टाइम कीपिंग रहता है. सो टाइम कीपिंग इज यूज फॉर पेमेंट. ये किसके लिए यूज होता है? फॉर पेमेंट टू वर्कर्स.
जो सैलरी पे करना है या वेजेस पे करने हैं, उसके लिए टाइम कीपिंग रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड एंड आउट रिकॉर्ड, व्हेन डिड यू एंटर द फैक्ट्री, व्हेन डिड यू लीव द फैक्ट्री। बट तुमने सुबह 7 बजे आए और शाम के 5 बजे चले गए तुम फैक्ट्री में से, ये जो 10 घंटे है, 10 घंटे में तुमने क्या क्या किया, उसका जो डिटेल है वो कहां पर रहेगा, टाइम बुकिंग रिकॉर्ड। तो टाइम बुकिंग रिकॉर्ड इज फॉर कॉस्ट असर्टनमेंट। लेबर कॉस्ट असर्टन करनी है ना तुमको, तो उसके लिए टाइम कौन सा रिकॉर्ड रहेगा, बुकिंग रिकॉर्ड। 10 आवर्स के लिए मैंने तुमको पे किया, बट आउट ऑफ द 10 आवर्स हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क ऑन द जॉब ए, हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क ऑन जॉब बी, हाउ मेनी आवर्स you were waiting for raw material like idle time, how many hours went into lunch or breakfast or susu, like that. So total आपके hours का breakup होना चाहिए। ये breakup कौन देगा आपको, time keeping and time booking record। difference between the time keeping and time booking is known as, बोलो, idle time। time keeping के हिसाब से हम वर्कर को पे करेंगे, और टाइम बुकिंग के हिसाब से जो उसको पे किया है उसको लिंक करेंगे टू रिस्पेक्टिव जॉब। बट रिमेंबर, इफ यू पेड वर्कर फॉर 10 आवर्स, विल ही बी वर्किंग ऑन जॉब फॉर 10 आवर्स? नो, यू पेड हिम फॉर 10 आवर्स, बट ही वर्कड ऑन व्हाट, फॉर ओनली 6 आवर्स ऑन द जॉब। 2 आवर्स वॉज नॉर्मल आइडल टाइम, 2 आवर्स वॉज एबनॉर्मल आइडल टाइम। उसका ट्रीटमेंट नीचे आएगा। टाइम एंड मोशन स्टडी आप ऑब्जर्व करो, मतलब वर्कर के जो मूवमेंट्स होते हैं ना, उसका एनालिसिस करना, उसको बोलते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी। इससे क्या होगा, यू विल कम टू नो वेयर वर्कर्स आर स्पेंडिंग मोर टाइम देन द रिक्वायर्ड टाइम। इफ यू वांट टू सेट द स्टैंडर्ड टाइम, आपने क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि हर एक ऑपरेशन को, हर एक प्रोसेस को कितना टाइम लगता है। For every manufacturing process, how much time should be taken? How will you come to know? Time taken, time and motion study. Motion is movement. So, har ek you can put up the cameras, or you can put some person there with the, let's say, stopwatch kind of thing, and you can analyze कि अच्छा ये process को worker 1 so much time, worker 2 so much time, worker 3 so much time, ऐसा total time आप analyze करो, and then you will come to know, oh, average time is so and so, but these workers are taking extra time, these workers are doing it in lesser time. Try to analyze. So time and motion study, you should analyze. Control idle time, control overtime, so that your labor cost starts coming down. Control over employee turnover, changes in workforce, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर, लेबर टर्नओवर। इसको फैंसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मालूम है, एट्रीशन रेट। रियल लाइफ में इसको बोलते हैं एट्रीशन रेट। चेंजेस इन योर लेबर फोर्स इज नोन एज व्हाट, एट्रीशन रेट। सी, आईटी कंपनीज में वर्कर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई भी कंपनी में। इफ देयर आर टू मेनी चेंजेस इन योर वर्क फोर्स, इट विल अफेक्ट, नंबर 1, प्रोडक्टिविटी। इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर रिक्रूटमेंट कॉस्ट। क्यों, बहुत सारे वर्कर छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे वर्कर आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके एचआर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगा। आपको वर्कर छोड़ के जा रहा है तो उसका एग्जिट इंटरव्यू लेना पड़ेगा, वर्कर आ रहा है उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, इफिशियंसी शुरुआत में कम रहेगी। सो यू नीड टू कंट्रोल लेबर टर्नओवर, यू नीड टू हैव प्रॉपर इंसेंटिव सिस्टम्स, सो दैट बाय गिविंग ए इंसेंटिव यू आर इंक्रीजिंग सैलरी, बट योर लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज कमिंग। आप इवेल्युएट करो, दिस जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग इज नथिंग बट इफिशियंसी कैलकुलेशन। हर एक वर्कर के आप क्या कर सकते हो, इफिशियंसी कैलकुलेशंस कर सकते हो, और चेक कर सकते हो कौन से वर्कर्स इफिशिएंट है, कौन से वर्कर्स इनइफिशिएंट है। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी ट्रैक करो, ये सारा चीज करके आप लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। अब 2 चीज सुनना बच्चों, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयर क्या देखना चाहेगा, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। सो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम पे आता है। एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर क्या देखेगा, टोटल लेबर कॉस्ट देखेगा, कितना सैलरी पे हो गया या कितना वेजेस, ना, टोटल अमाउंट मत देख दे। क्यों, वो टोटल अमाउंट इज नॉट कंपेरेबल। सो व्हाट एम्प्लॉयर विल लुक एट, एम्प्लॉयर विल फोकस ऑन लेबर कॉस्ट
per unit of FG produced. Per unit of finished goods produced, what is my labor cost? Who will look at it? Employer will look at it. समझा क्या रे? Employer will look for consistent reduction in labor cost per unit. What employee will look at? Employee भी देखेगा क्या उसको labor cost per unit को? ना 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 ना. Employee क्या देखेगा बोलो? Salary देखेगा गधे. He will look at earnings per hour. Don't look at the total amount. Look at what? Earnings per hour. See, बहुत बार आप टोटल अमाउंट पे कंपैरिजन करते हो. टोटल अमाउंट पे कंपेयर मत करो. टोटल अमाउंट अर्न करने के लिए कितने घंटे काम किया है वो भी देखो. सो एम्प्लॉयर के हिसाब से इवैल्यूएट करना है तो लेबर कॉस्ट देखूंगा. If labor cost is coming down by improving efficiencies or by monitoring idle time, monitoring overtime, or by ensuring that labor turnover does not take place, बहुत सारे चेंजेस नहीं हो रहे लेबर फोर्स में, ये सारी चीजें भी आपने इंश्योर की ना, तो आपका लेबर कॉस्ट क्या होते रहेगा बच्चों? डिक्लाइन होते रहेगा या इंक्रीज नहीं होगा. क्योंकि नॉर्मली अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो आपका लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. इवन इफ यू इंश्योर दैट लेबर कॉस्ट पर यूनिट डजंट गो अप इन अ इन्फ्लेशन सिनारियो, यू आर अचीविंग मार्जिन इंप्रूवमेंट. अब बोले यार कहां से कहां जा रहे हो तुम? क्या वर्ड यूज किया मैंने? मार्जिन इंप्रूवमेंट. इमेजिन करो ना यार, अगर आपका लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम हो रहा है तो आपका मार्जिन क्या होगा? बढ़ेगा. तो ये सारा चीज करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे टेक्निक्स है, तो वो टेक्निक्स हम देखेंगे. 5 मार्क का क्वेश्चन बढ़िया से आ सकता है इन चीजों पे. आइडल टाइम तो अलग अलग पॉइंटर्स है. तो सिंपली मैंने बोला ज्यादा इधर उधर का बकवास नहीं करने का. क्या क्या है इसमें? आइडल टाइम हमें लर्न करना है इस चैप्टर में, उसका न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट लर्न करना है. ओवर टाइम वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन. वेज पेमेंट सिस्टम्स क्या है वो समझने हैं. इफिशियंसी का कैलकुलेशन समझना है और खत्म. एम्प्लॉय टर्नओवर, दैट्स इट. 1 घंटे में अपना चैप्टर खत्म. कुछ क्वेश्चंस देखने का उसके बाद फिर. सो यू शुड नॉट लुक एट जस्ट द क्वेश्चंस व्हिच आई एम शेयरिंग. जो रेगुलर नोट्स में आपको क्वेश्चंस दिए हैं वहां पे बहुत सारे डिटेल्ड टाइप्स दिए हैं. उसमें से हर एक टाइप में से एक दो क्वेश्चंस तो आपने क्या करना चाहिए? ऑडिट करवाने चाहिए, ऑडिट करने चाहिए. हिंदी इज बैड. सो व्हाट इज इडली टाइम? इडली टाइम इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम पेड फॉर एंड टाइम booked for. Time paid and time booked. Time is booked on what? Time is booked on various jobs. Not Steve Jobs. It is booked on various jobs. तो ये टाइम बुकिंग कैसे होता है? टाइम बुक्ड इज एज पर टाइम शीट. हर एक वर्कर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम शीट मेंटेन करने को बोलेंगे. सो वर्कर एक अपना टाइम शीट या उसको जॉब कार्ड बोलो, टाइम शीट बोलो, जॉब कार्ड बोलो. तो वर्कर को बोलेंगे बेटा देख, तू सुबह 7 बजे आया, शाम के 4 बजे गया, जो भी है, सुबह 7 से 4 तूने क्या क्या किया, क्या क्या गुल खिलाए, वो सब कुछ तेरे को लिख के रखना पड़ेगा. और ये सुपरवाइजर क्या, तेरा जो मेन सुपरवाइजर होगा या इंचार्ज होगा वो क्या करेगा? मैनेजर अप्रूव करेगा. तो हमें उससे पता चलेगा आउट ऑफ 8 hours 10 hours फॉर विच वी मेड अ पेमेंट टू द वर्कर, 10 hours पेड है ना, तो उसमें से कितने आवर्स प्रोडक्टिव है. सो दैट इज टाइम बुक्ड. कितने आवर्स अनप्रोडक्टिव है. सो आइडल टाइम इज बेसिकली अनप्रोडक्टिव आवर्स. बट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पजेस दैट आइडल टाइम इज गोइंग टू बी बाइफरकेटेड इनटू 2 parts, नॉर्मल आइडल टाइम एंड अबनॉर्मल आइडल टाइम. नॉर्मल आइडल टाइम मतलब क्या होता है बच्चों? अनअवॉइडेबल रहता है. लंच ब्रेक अनअवॉइडेबल. चेंजिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब अनअवॉइडेबल है. जॉब चेंज कर रहे हो तुम. राइट नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग वन, वर्किंग ऑन वन जॉब, यू आर गोइंग टू अनदर जॉब. समझा क्या? अब उसके लिए रॉ मटेरियल लेके जाना है आपको. कहां पे जाना है रॉ मटेरियल लेने के लिए? स्टोर्स में. इफ यू वांट टू गो टू स्टोर्स देन टाइम लगेगा ना कुछ तो. सो द टाइम लॉस्ट इन गेटिंग द जॉब और इन गेटिंग रॉ मटेरियल और waiting for it is normal idle time. It is unavoidable. It is treated as a part of cost of production. What we do is we inflate the wage rate. What we do for normal idle time?
वी इंफ्लेट वेज रेट। बच्चों यहां पे स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है। दिस इज सेम लाइक मटेरियल, नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल जैसा होता है ना, वैसा ही है ये। इन केस ऑफ अ डायरेक्ट वर्कर्स, इट इज an allowance for normal idle time is considered while setting up the standard hours itself. See what you can do is, efficiency के लिए जब आप standard hours calculate करते हो, you should consider normal idle time in that itself. क्यों? Otherwise, worker will always look to be inefficient. See, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? फॉर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट, लेट्स से आई से 20 minutes are required. One unit of finished goods requires how many minutes? 20. ये जो 20 मिनट है ना, इस 20 मिनट में क्या इंक्लूडेड है? नॉर्मल आइडल टाइम इंक्लूडेड रहता है. इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय इंफ्लेटिंग wage rate. In case of indirect workers, it will be part of overheads. That is what you need to remember is, in case of a direct workers, it will be part of cost of production. For indirect workers, it will be part of what? Overheads. देखो मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं. हैव पेशेंस. लुक एट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. मैं इसमें पेड लीव ऐड करता हूं, बहुत सारी चीजें ऐड करता हूं वन बाय वन. लेट्स से सैलरी ऑफ अ वर्कर इज ₹30,000 पर मंथ. 30,000 पर मंथ. ठीक है. आवर्स आर 8 hours per day. 8 hours per day. 8 hours per day उसके वर्किंग आवर्स है. वीकली ऑफ 4 in month. Paid leaves 12 in year. मैंने क्या बोला उसको? 12. तेरे को क्या मिलेगा? पेड लीव्स मिलेंगे. कुछ समझा क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. दिस इज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो तो काम का नहीं है बच्चों. क्यों काम का नहीं है? वो उसके सैलरी में से कट होगा. अपनी कॉस्ट है क्या है? इज इक्वल टू 12%. इज इक्वल टू हाउ मच? 12%. उसका बेसिक सैलरी ऊपर मैंने दे दिया आपको. नाउ ड्यूरिंग अ मंथ, वर्कर spent time as under. कैलकुलेटर दे रहे मुझे क्वेश्चन सेट करने के लिए. तो during the month, worker spent a time as under on respective jobs. $160. He spent how many hours? 160 hours on what? Respective jobs. ठीक है. Every day 30 minutes थोड़ा कम हो जाएगा. 45 minutes. It's a too good question. Are lost due to lunch, etc. Lunch and etc. reasons, similar reasons. etc. मतलब obviously it will cover a similar reason. आपने इंटरप्रिटेशन के रूल्स किए होंगे लॉ के अंदर. तो वर्ड etc. cannot take a different meaning. It has to take a meaning from whatever the words are appearing earlier. So 45 minutes are lost. Worker worked on job 3123 for 24 hours. Find, खतरनाक क्वेश्चन बन गया है. Find labor cost for what? Job
3123. Find labor cost for job 3123. जो 3123 का लेबर कॉस्ट आपको ढूंढना है, बस बढ़िया ऐसा क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बोला, वट एवर इज अ नॉर्मल आइडल टाइम, दैट कॉस्ट ऑफ अ नॉर्मल आइडल टाइम इज गोना बी स्प्रेड ओवर अदर यूनिट्स, एंड वट एवर इज द कॉस्ट ऑफ abnormal idle time, it will be written off to profit and costing, profit and loss account. देखो नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या बोला मैंने, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाउ आई एम गोना इन्फ्लेट वेज रेट। जैसे नॉर्मल लॉस में हम क्या करते थे, नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है वो बाकी गुड यूनिट्स में स्प्रेड कर देते हैं, वैसे ही नॉर्मल आइडल टाइम की जो सैलरी है वो बाकी आवर्स के ऊपर हम क्या कर लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे। एबनॉर्मल आइडल टाइम में क्या करेंगे, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन production cost, it is shown as a separate item in the costing, profit and loss account. For each category that is controllable and uncontrollable idle time, the breakup of the cost may be shown separately. See, there might be some abnormal idle time which is controllable. For example, electricity गया और उसकी वजह से वर्कर शांत बैठे थे, ऐसे खेल रहे थे गोटिया, you could have controlled it. How? By setting a DG set. There are certain abnormal idle times which are controllable. There can be certain idle time which is beyond your control totally. तो आपने ये सिर्फ रिपोर्टिंग करना चाहिए। Normal idle time will increase the labor cost of other hours. Abnormal idle time, will it affect a labor cost? No. Abnormal idle time will not affect a labor cost at all. Have you understood? देखो क्वेश्चन, अब क्या करूंगा मैं बच्चों, बहुत सारी चीजें इसमें। पहले आप लेबर कॉस्ट रुपीज में आइडेंटिफाई करो और फिर उसको पर आवर पे लेके जाओ। हमेशा याद रखने का, लेबर कॉस्ट कितना है, टोटल लेबर कॉस्ट कितना आएगा बच्चों, पे कितना करना है तुमको एक महीने का, 30,000 तुमको तो पे करना है, इसके लिए बेसिक सैलरी प्लस उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, पीएफ पे कर रहे हो। अभी क्वेश्चन में बहुत सारे अलाउंसेस दिए, तो आप टेबल बनाओ ना, इंटू 1.112 क्या कर रहा हूं मैं, 12% ऐड करने के अलावा इंटू 1.12 कर रहा हूं, कितना तरह 33,600. What is it? Total labor cost. Now I need to identify hours paid for. Hours paid for. उसका ब्रेकअप करेंगे, कितने घंटे के लिए तुमने पे किया बच्चों, देखो तुमने एक महीने का पेमेंट किया ना उसको, हर रोज कितने घंटे काम करता वो आदमी, 8। तो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज व्हाट यू शुड डू इज, यू शुड सिंपली से 30 days into 8 hours. तो आप उसको कितने घंटे का पेमेंट कर रहे हो, 240 आवर्स का पेमेंट कर रहे हो। अगर ओवर टाइम रहा तो आपको मालूम होना चाहिए ओवर टाइम कौन से जॉब पे किया है, उसका ओवर टाइम का ट्रीटमेंट अलग आएगा। आई डिड नॉट टुक ओवर टाइम पर्पसफुली, व्हाई, आगे एक्सप्लेन नहीं किया ना अभी तक। ओवर टाइम का कॉस्ट जो है वो मालूम रहेगा आपको कैसे ट्रीट करना है। ओवर टाइम पे आ रहा हूं मैं 240। अब ये 240 के हम 2 बच्चे पैदा करेंगे, कौन से बच्चे पैदा करेंगे, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, कम्युनिस्ट साले, अरे ये आइडल टाइम नहीं है 240, 240 आवर्स पेड फॉर, आवर्स पेड का ब्रेकअप किसमें करना है, आवर्स बुक्ड एंड आइडल टाइम। ये बोलता है इसको ब्रेकअप नॉर्मल और एबनॉर्मल में करना है, आवर्स बुक्ड, ऐसे चिल्लाते हम बच्चों को ताकि वो सुधर जाए, आवर्स बुक्ड। और दूसरा रहेगा इडली टाइम, आवर्स पेड माइनस आवर्स बुक्ड इज इडली टाइम ना। अब आवर्स बुक्ड आपको दे दिया मेरे हिसाब से, कहीं तो मैंने क्वेश्चन में ये तो दिया था ना, हाँ 160। सी आउट ऑफ 160 जॉब 3123 पे 24 गए, ऐसे बहुत सारे जॉब्स पे गया होगा ना। आवर्स बुक्ड कितने बच्चों, 160 आवर्स, हैव यू गॉट इट। अब इडली टाइम कितना आएगा, 80 आवर्स, 80 आवर्स का इडली टाइम आया। इडली टाइम का ब्रेकअप करेंगे हम, इसका ब्रेकअप आएगा बेटा नॉर्मल आइडल टाइम और आएगा एबनॉर्मल आइडल टाइम। कुछ समझा गया। अब कौन सा कितना है मालूम नहीं है, सो व्हाट आई एम वीकली ऑफ तो 4 रहेंगे, ये तो नॉर्मल आइडल टाइम है। कैसे यार, वो छुट्टी देना पड़ता है लॉ के हिसाब से, यू हैव टू हैव कंपल्सरीली 1 वीकली ऑफ, सो इट इज लाइक अ नॉर्मल आइडल टाइम। द कॉस्ट ऑफ दोज
4 days विच इज पेड लीव. आप पे तो कर रहे हैं ना, आप पूरे महीने के लिए पेमेंट कर रहे हैं. या ऊपर आप 26 ले लो. यू कैन टेक, अगर आपको ये पेड लीव यहां पे नहीं लेना, यू कैन टेक अ 26 days above. Don't say that you are making a payment for 30 days. Say that you are making a payment for 26 days. तो मैं यहां पे पहले लिख रहा हूं वीकली ऑफ. तुमको अलग से नहीं लिखना है, इधर नीचे चलेगा, दिक्कत नहीं है. वीकली ऑफ कितने देते? 4 days इंटू 8 hours. कितने गए? 32 प्लस और है ना लंच. लंच में कितना गया तुम्हारा? 45 minutes पर डे. अभी लंच के लिए तुम कितने दिन आए होगे? 30 में से 4 दिन तो तुम्हारे वीकली ऑफ में गए, रह गए 26. अब तुम्हारे पास एक पेड लीव है. वीकली ऑफ इज सबके लिए ऑफ है. पेड लीव 12 days इन अ ईयर. आई एम अज्यूमिंग ही इज यूटिलाइजिंग इट इवनली. कि इस महीने अभी आपको एक स्पेसिफिक डेटा तो दिया नहीं है, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा? तुम 4 दिन संडे थे और 1 दिन तुमने छुट्टी लिया, तो तुम आए कितने दिन? 25 दिन. 45 minutes अप इंटू 25 days अपॉन 60. बोलो 18.75 hours that went into what? Abnormal idle time, normal idle time. एंड ये मैं पेड लीव ले लूंगा. पेड लीव 1 day इंटू 8 hours. कैलकुलेट किया था रे 30. ठीक, बोलो टोटल कितना है? सो टोटल नॉर्मल आइडल टाइम इज इक्वल टू 32 प्लस 18.75 प्लस 8 इज इक्वल टू 58.75. ठीक है, और फिगर राउंड नहीं आएंगे क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है. तो 58.75 एबनॉर्मल कितना हो गया? 80 माइनस 58.75, 20.25. 20.25 hours is what? Normal. So abnormal. 21 आ रहा है. ओके, 21.25. आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस. सर ही हैज अ 4-day हॉलीडे. हाँ तो लिया ना बेटा मैंने 4-day हॉलीडे. सरविन पेड लीव, पेड लीव 12 days इन a year and वीकली ऑफ. मैंने करेक्ट लिया है. आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. सो 240 घंटे के लिए हमने पेमेंट किया उसको, उसका मैंने ब्रेकअप किया. अब आपको ये जो 5 दिन है, 4 वीकली ऑफ किया और 1 पेड लीव का, वो यहां से ही कम करना है तो आप कम कर सकते हो. 25 इंटू 8 कर सकते हो आप. उससे कोई फर्क आंसर को नहीं पड़ने वाला है. अब मैं क्या करूंगा? मेरा इफेक्टिव लेबर कॉस्ट पर आवर निकालने का है. ऑब्जर्व करो, इफेक्टिव लेबर कॉस्ट per hour. So tell me, I'm not going to say per hour cost is 33,600 divided by 160. No, हमने 33,600 कितने घंटे के लिए पे किया? 240. लेकिन 240 में से 58.75 ये तो अनअवॉइडेबल है ना. तो हम क्या करेंगे? अमाउंट पेड. ओके, अमाउंट पेड की जगह पे मैं लिखता हूं लेबर कॉस्ट. क्या बोलूंगा? लेबर कॉस्ट माइनस, नहीं स्क्रैप वैल्यू कुछ होता ही नहीं. मटेरियल में कैसे स्क्रैप वैल्यू था आपका? यहां पे कुछ स्क्रैप वैल्यू रहेगा क्या बच्चों? नहीं. लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय आवर्स पेड फॉर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम. माइनस व्हाट? नॉर्मल आइडल time. So my cost was 33,600, which I am gonna spread over 240 minus 58.75. समझा क्या तुमको? So I am going to spread that cost over, in simple language, 160 plus abnormal वाला 21.25 is a denominator. बोलो कितना था? 185.38 पर आवर. तो मैंने क्या किया? वेज रेट इंफ्लेट किया. अवरेज तो किधर इंफ्लेट किया? देखो पेड, तुम क्या कर रहे थे? 33,600 कितने घंटे के लिए पे किया तुमने? 240 के लिए पे किया ना बच्चों. 33,600 डिवाइड बाय 240 कर. चल 1
140 140 तुम पर आवर बोलो, लेकिन आउट ऑफ वन यू कैनॉट गेट वर्क फॉर ऑल द डेज ना. What I have assumed the paid leave is used evenly every month. One leave per month. See, for your cost estimation, you will assume one leave per month. Actual, किसी एक महीने में तुमने ज्यादा लीव लिया होगा, किसी एक महीने में तुम क्या करोगे, कम लीव लोगे. That is gonna happen. वो तो ठीक है, हम एस्टिमेट कर रहे हैं लेबर कॉस्ट का, एक्चुअल नहीं कर रहे हैं. सो ये 140 को मैं कहां पे लेके गया, 185 पे लेके गया. क्यों लेके गया? क्योंकि जो नॉर्मल आइडल टाइम है उसकी जो कॉस्ट है वो मैंने बाकी आवर्स पे स्प्रेड कर दी. बाकी आवर्स कितने थे, वो जो भी थे. आगे ना आंसर तुमको समझा ना. तो लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब वो नंबर 11 क्या था बता, लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब 3123 इज इक्वल टू, उस पर कितने आवर्स किए थे, 24 इंटू 185.38. बोलो बोलो 4450. आई होप सबको समझ में आया. तो देखो आइडल टाइम ट्रीटमेंट क्या है आइडल टाइम का. ओके, पहले आइडल टाइम कैसे निकालोगे, आवर्स पेड फॉर माइनस आवर्स बुक्ड, डिफरेंस इज आइडल टाइम. उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल में स्प्लिट करेंगे. नॉर्मल आइडल टाइम की जो कॉस्ट है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय स्प्रेडिंग इट ओवर अदर यूनिट्स. आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस. अगला आइटम इंपॉर्टेंट है, मार्क करना May 23 एग्जाम के लिए. ओवर टाइम का ट्रीटमेंट. आज लेट हो गए. हाँ, व्हाट इज ओवर टाइम. नॉर्मल जो टाइम होता है उससे ज्यादा काम करवाया तो ओवर टाइम. अब ये ऐसा डेफिनेशन घटिया है. तो फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है, इफ अ वर्कर इज आस्क्ड टू वर्क in excess of 48 hours per week. How many hours? 48 hours per week or 9 hours per day. If you are asked to work for more than 9 hours per day or 48 hours per week, whichever of the two is beneficial to worker. तो आप कैसे करोगे, हर रोज 9 के ऊपर तुमने काम किया, 9 के ऊपर का ओवर टाइम है, और हफ्ते का 48 के ऊपर गया तो वो ओवर टाइम है. तो आपको ओवर टाइम दो एंगल से कैलकुलेट करना है. डेली एंगल, 9 के ऊपर जितने भी आवर्स गए वो उनका टोटल लो, और वीकली एंगल 48 के ऊपर गया उसका लो. विच एवर ऑफ द टू इज हायर विल बी ट्रीटेड एज अ ओवर टाइम. एंड एज पर लॉ, आई डिड नॉट से इन सीए एग्जाम्स, एज पर लॉ ओवर टाइम शुड बी पेड एट डबल द नॉर्मल रेट. तो अगर तुम्हारा नॉर्मल वेज रेट 400 रुपीज पर आवर है, ओवर टाइम के लिए आपको 800 पर आवर देना. ओवर टाइम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 400 के जगह पे 800 पे करना पड़ेगा. सो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम प्रीमियम. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. टोटल वेजेस फॉर ओवर टाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट. एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस. सो ओवर टाइम इज वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग hours. It is wages paid for overtime at a normal rate plus premium for overtime. Extra payment. वो extra payment का treatment हमें अच्छे से समझना है. So there will be some work done in a normal time. There will be some work done in a overtime. Why are you doing a overtime is more important for treatment of overtime. Overtime का treatment करने के लिए क्या important है बच्चों? The reason for doing a overtime. Are you clear? So what is overtime premium? Entire 800, is it a premium? No. Premium is equal to only 400. So extra amount paid over and above the normal rate is known as overtime premium. अब CA एग्जाम में वो प्रीमियम 30% भी रहता है, 40 भी रहता है, 50 भी रहता है. रियल लाइफ में लॉ के हिसाब से प्रीमियम कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए. तो sir, can you send a PDF earlier so that we can take a printout and write down it simultaneously? सब तेरे घर पे प्रिंटर होगा तो मैं कल भेजूंगा तेरे को. पहले से ये मैं PDF बाद में भेज रहा हूँ बिकॉज इसके ऊपर के जो नोटेशंस है ना, तेरे को नोटेशंस दे रहा हूं तो तू बाद में प्रिंट ले ले, सब कुछ रेडीमेड रहेगा तेरे पास. लिसन टू दिस, इंपॉर्टेंट नाउ. रीजंस ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम.
क्या है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट है. If overtime premium is done due to the urgency of the work on a particular job, then overtime premium will be charged to that job only. For example, I run a printing press. चिराग जी हमारे पास आए जल्दी में, सर 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 एक अर्जेंट काम है सर. बोला क्या? नहीं, मेरी शादी है परसों, उसके वेडिंग कार्ड मेरे को प्रिंट करवाने हैं, बहुत अर्जेंटली प्रिंट करवाने, अभी अभी फिक्स हुई है, सो जल्दी से वेडिंग कार्ड प्रिंट कर. मैं बोला चिराग यार तू अभी आया, 2 दिन के बाद शादी, तेरे को कार्ड चाहिए? नहीं सर चाहिए. मैं बोला ठीक है, आई विल गेट इट डन, बट तेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा. लॉजिकली आई विल रिकवर एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम हिम, बट रिमेंबर एन नंबर ऑफ टाइम्स आई टोल्ड यू, ब्यूटिफुल लाइन इन द कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. लॉजिकली मैं क्या करूंगा, चिराग के मैं प्रिंटिंग प्रेस रन करता हूं, अब मुझे अर्जेंसी में उसका वेडिंग कार्ड प्रिंट करवाना है, तो मैं ओवर टाइम में वर्कर्स को बोलता हूं आज रुको, हमारे पास एक कस्टमर का काम आया हुआ है, जल्दी से ये प्रिंट करवा के उसको देने का है. तो मैं उस जॉब को ओवर टाइम प्रीमियम का कॉस्ट चार्ज करूंगा. तो लॉजिकली मैंने चिराग से रिकवर भी करना चाहिए. अब मैं रिकवर करूंगा उससे या नहीं करूंगा, वो सेल्स या प्राइसिंग डिसीजन है. लॉजिकली आई शुड रिकवर, बट विल आई रिकवर और विल आई नॉट रिकवर, दैट डिपेंड्स ऑन योर कमर्शियल डिसीजन. हम प्राइसिंग लर्न नहीं कर रहे हैं, हम क्या लर्न कर रहे हैं? कॉस्टिंग. सो मैंने आपको 1000 बार बोला, कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग आर सेपरेट as well as they are related. Many cases may you say I am increasing my selling price because my cost price has gone up, but there are so many examples I can give you where you don't increase your selling price even though cost has gone up. आप बोलेंगे हाँ हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपके कस्टमर के पास कैपेबिलिटी नहीं होता है इस चीज का, प्राइस इंक्रीज बेयर करने का. सो यू डोंट इंक्रीज द प्राइस इवन दो कॉस्ट हैज गॉन अप. हम प्राइसिंग लर्न नहीं कर रहे, हम कॉस्टिंग लर्न कर रहे हैं. तो अगर आपने किसी जॉब की अर्जेंसी की वजह से ओवर टाइम करवाया, तो आपने क्या करना चाहिए? ओवर टाइम प्रीमियम का जो भी कॉस्ट है उस जॉब को डेबिट करना चाहिए, उस जॉब को ट्रीट करना चाहिए, चार्ज टू दैट जॉब. आर यू क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, दिस इज रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 2, ओवर टाइम प्रीमियम का कॉज क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है? टू मेक अप द शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट. कुछ तो हुआ था और प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल आया. इट इज ट्रीटेड एज ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर which worked overtime. This is unexpected. This was not something planned for. This is some abnormal event that took off. This is not a regular feature. This is one-off event. कुछ तो हुआ, shortfall in production आया. Is it regular shortfall in the production? No, no, no. ऐसा कुछ नहीं हुआ. कुछ तो, let's say machine का breakdown हो गया होगा. Example दे रहा हूं. There is a breakdown of machine in one of the department. तो उस डिपार्टमेंट का मशीन का ब्रेकडाउन, आपने मशीन ठीक किया तो उनके वर्कर्स को 1, 2, 3 दिन ओवर टाइम करना पड़ा. तो चार्ज इट एज अ कॉस्ट सेंट, ट्रीट इट एज अ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ दैट कॉस्ट सेंटर. कॉस्ट सेंटर मतलब डिपार्टमेंट. नहीं है कुछ तो, विक्स की गोली वगैरह कोई जरूरत नहीं है. तो बैठ, ठीक है कुछ तो, ठीक है. कीप क्वाइट. टू मेक अप द शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का फॉल्ट है सेम एज अबाउ. इट इज ओवर टाइम ट्रीटमेंट ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ अनदर डिपार्टमेंट. ट्रीट इट एज अ कॉस्ट ऑफ लैटर डिपार्टमेंट. जिस डिपार्टमेंट ने फॉल्ट किया है उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ट्रीट करना. अब to take advantage of expanding market or rising market, overtime work on account of abnormal conditions will be charged to costing P&L. मुझे वो नहीं चाहिए. मुझे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन और एक है तो वहां पे मिसिंग है. सबसे इंपॉर्टेंट रीजन देखो, why have you done overtime premium? बच्चों ब्रॉडली आपको 3 चीजें याद रखनी. इफ overtime work is worked due to request of a particular customer or due to urgency of the work on a particular job, charge it to that job. Remember Chirag's marriage. Number 2, if overtime is due to the fault of a particular department or some abnormal fault of management of some department, treat it as an overhead cost of that department. If it is due to natural calamity, flood, earthquake, treat it as a abnormal cost.
सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, ओटी ड्यू टू, और ओटी कैरिड आउट रेगुलरली, ओवर टाइम कैरिड आउट रेगुलरली ड्यू टू व्हाट, शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। मतलब आप ओवर टाइम एक दिन दो दिन नहीं करते हो, आप ओवर टाइम थ्रू आउट द ईयर कर रहे हो। क्यों थ्रू आउट द ईयर कर रहे हो? शॉर्टेज है वर्कर्स का, आपके पास वर्कर्स ही नहीं है रिक्विजिट नंबर में। आपके फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है एनुअल बेसिस पे, वो कंप्लीट करने के लिए 500 आदमी चाहिए, आपने लेके रखे 350, तो 150 लोगों का काम कौन करेगा? वो 350 लोग, उनको ही हम बोलेंगे बेटा एक्स्ट्रा काम कर ले, तेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा मैं। तो व्हाट यू शुड डू, ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल, ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल आइडल टाइम, इन्फ्लेट वेज रेट। क्या बोलूंगा मैं? Did I say overtime premium will be treated as overhead cost? No. Did I say it will be debited to costing P&L? No. What did I say? आप वेज रेट ही इन्फ्लेट करना। आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो ये क्वेश्चन हमने किया था, लेबर कॉस्ट का चैप्टर ढूंढने दो मेरे को, I'll just show you the question। ये अपना रेगुलर बुक है, उसमें ये क्वेश्चन रहेगा पक्का, आई एम एक्सपेक्टिंग, हाँ ये वाला क्वेश्चन। तो देखो ये फैक्ट्री में बेसिक वेज रेट क्या था? 50 पर आवर। नॉर्मल आपने ओवर टाइम किया आफ्टर वर्किंग आवर्स, 175% ऑफ बेसिक वेजेस हम पे कर रहे हैं। संडे को काम किया तो हम 225% पे कर रहे हैं। 175 जब पे कर रहे हैं तो 75% इज ओवर टाइम प्रीमियम। 225% जब पे कर रहे हैं तो 125% इज 100 के ऊपर का जितना भी है वो प्रीमियम है। अब देखो नॉर्मल टाइम में काम कितना किया वर्कर्स ने? 1 लाख आवर्स। ओवर टाइम में काम कितना किया? 20,000 hours. Overtime on Sundays and holidays 5,000 hours, है ना? टोटल काम कितना किया है? 1,25,000 आवर्स का काम किया है ना, पूरे ईयर में। अब वन ऑफ द जॉब जेड जिसके ऊपर ये काम किया है, अब रीजन क्या है? देखो फर्स्ट रीजन, फाइंड आउट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू व्हाट, जॉब जेड and overhead in each of the following cases. First case, overtime is done regularly due to the policy of what? Labor shortage. आपके पास requisite number of workers ही नहीं, तो आप क्या करोगे? Are you going to charge premium as to costing P&L? No. हम क्या करेंगे? ये पूरे 1,25,000 आवर्स के लिए कितना पेमेंट किया? Whatever amount comes up, divided by 1,25,000। कैसे पेमेंट निकालोगे? 1 लाख इंटू 50, ये 1 लाख को 50 से मल्टीप्लाई करोगे। 20,000 इज वर्क डन हियर, 175%। टेको ऑन कैलकुलेटर, 50 इंटू 175%, 87.5। यहां पर आपने 87.5 पे किया, ये आईसी है अपना, इधर 112.5 पे किया। जितना भी पेमेंट किया आपने, अमाउंट आई एम नॉट रिलेवेंट, एक्स। Trust me, this question will come up. X is a total amount divided by 1,25,000. You will get payment per hour. You will get payment per hour. Have you understood payment per hour? 1,25,000 कार्स के लिए इतना पेमेंट किया। अब इसमें से कुछ नॉर्मल टाइम के लिए है, कुछ ओवर टाइम के लिए, ऐसा बाइफर्केशन करना ही नहीं है। कब नहीं करना है? इफ ओवर टाइम इज डन ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ लेबर शॉर्टेज, तो ये रेट आएगा, पूरा का पूरा कॉस्ट लेबर कॉस्ट ट्रीट किया जाएगा। नथिंग विल बी ट्रीटेड एज ओवर टाइम प्रीमियम और ओवरहेड और कॉस्टिंग P&L, क्योंकि हमारे पास वर्कर्स ही क्या है? कम है। वी डोंट हैव रिक्विजिट नंबर ऑफ वर्कर्स। सेकंड सिचुएशन क्या है? ओवर टाइम इज वर्क इरेगुलरली टू मीट requirements of production. If overtime is done irregularly, not on a regular basis, कभी कभार overtime करते हैं हम, मशीन का ब्रेकडाउन हो गया या कुछ रीजन हो गया। Is it due to request of customer? No, not a request of customer. Irregularly मशीन ब्रेकडाउन या कुछ रीजन हो गए, तो हम क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किया है ना, उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को ओवरहेड ट्रीट करेंगे। I did not say entire cost. आपका नॉर्मल कॉस्ट क्या था? 50 रुपया। सी, नॉर्मल टाइम में काम करवाओ या ओवर टाइम में काम करवाओ, 50 रुपए तो पे करने वाले थे तुम। एक्स्ट्रा काम करवा के, ओवर टाइम में करवा के, इधर कितना पे किया तुमने? 37.5, इधर कितना पे किया? 62.5।
एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा, ये जो ट्रीटमेंट मैंने एक्सप्लेन किया ना, वो ट्रीटमेंट किसके लिए है बच्चों? ट्रीटमेंट इज फॉर एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट को क्या बोला हमने? ओवर टाइम प्रीमियम। तो मार्क ओवर टाइम प्रीमियम एज इंपॉर्टेंट, मतलब कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम पर्पज। नेक्स्ट, अभी टाइम पास चल रहे, तो हमने क्या किया? दो चीजें की, आइडल टाइम का ट्रीटमेंट किया और ओवर टाइम का ट्रीटमेंट किया। ओवर टाइम के क्वेश्चंस अच्छे से करके रख रहे हैं। अभी वेज पेमेंट सिस्टम बहुत अभी आसान कर दिया। पुराने जमाने में इतना इंस्टीट्यूट बजा था ना बच्चों को, इतने सिस्टम्स थे। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही बचे, हाल्से, रोवन। सो यू कैन पे टू द वर्कर्स ऑन टाइम बेस। टाइम बेस मतलब आवर्स वर्क इनटू आवरली रेट, सबसे आसान है, आवर्स वर्क इनटू आवरली रेट। आउटपुट बेस पर यूनिट, पीस रेट बोलते हैं हम इसको, समझा क्या? पीस रेट। वी कैन पे आइदर टाइम बेस और आउटपुट बेस। आउटपुट बेस मतलब पर यूनिट इतना पैसा मिलेगा तेरे को, और यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। और प्रीमियम बोनस मेथड, प्रीमियम बोनस मतलब आइदर हाल्से और रोवन। बच्चों, वर्कर शुड बी पेड comprising of two elements, two components. One is a payment for hours worked and one is a bonus. हाल्से एज वेल एज रोवन दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, याद है? क्या कॉमन है दोनों में? दोनों का लॉजिक सेम है, हाल्से हो या रोवन हो। आई होप ये टाइम बेस एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है यार। आवर्स वर्क इनटू आवरली रेट, किसी के अगर वो नहीं आता तुमको तो मतलब तुमने आउटपुट बेस्ड, हाल्से और रोवन दोनों बहुत आसान है। कैसे? दोनों बोलते हैं वर्कर को हमने एक सेंस ऑफ अश्योरेंस देना चाहिए, कुछ भी हो बेटा तेरे को मिनिमम टाइम वेजेस तो मिलेंगे। तो टोटल वेजेस कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? बोलो। 2 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट क्या होता है? टाइम वेजेस बोलते हैं उसको। जो भी टाइम तुमने फैक्ट्री के अंदर स्पेंड किया है उसके लिए हम तुम्हें कुछ वेजेस दे देंगे। और दूसरा एलिमेंट क्या है? बोनस। बच्चों, ऐसे स्ट्रक्चर आपको दुनिया भर में किधर नहीं मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड एनी कंपनी पेइंग टू वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ हाल्से एंड रोवन। व्हाई? द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ हाल्से रोवन। व्हाट अबाउट पेड लीव? व्हाट अबाउट पेड लीव? तुम क्या बोल रहे हो वर्कर को? तुमने ऑब्जर्व किया सारे सीए एग्जाम के, अगर आईसीए का कोई आदमी देख रहा है, नमस्ते, प्लीज थोड़ा बहुत रिसर्च करिए, लोगों का करियर बर्बाद मत करिए। आप बेसिक चीज, कोई भी फैक्ट्री में आप वर्कर को ऐसा बोलोगे पर आवर तेरे को इतना पेमेंट मिलेगा, तू आया फैक्ट्री पे तो ही तेरे को पेमेंट मिलेगा, नहीं आया पेमेंट गायब। कोई नहीं आता बेटा। तुम आईसीआई में जॉब कर रहे हो, आपको भी पेड लीव मिलती है, आपको भी वीकली ऑफ मिलता है। तो फैक्ट्री में ऐसा हाल से रोन क्यों करते? कोई भी फैक्ट्री में ऐसा पेमेंट नहीं होता होगा यार। आप क्या बोल रहे हैं वर्कर को? टाइम वेजेस क्या है? आवर्स वर्क्ड इनटू व्हाट? आवरली रेट। खत्म। आवर्स वर्क्ड इनटू आवरली रेट, खत्म। तुम फैक्ट्री में आए तो ही तुमको पैसा मिलेगा, नहीं आए पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता रहे। तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू पे टू वर्कर्स ओनली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे नो पेमेंट। रियल लाइफ में ऐसा फिक्सिंग नहीं होता। रियल लाइफ में आप क्या करते हो, सैलरी जो फिक्स होती है वो मंथली बेसिस पे फिक्स होती है। ये गधे पर आवर फिक्स करते हैं। पर आवर फिक्स करने के लिए वो थोड़े अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं। आवर्स वर्क्ड इनटू आवरली रेट, वो सिंहगढ़ पे उधर जाके बोर्ड लगाया था उस दिन उन्होंने, ये तुम्हारा ओयो नहीं है। हाँ मतलब, अरे आउट हाल्से का बच्चा भी उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा यार, हम फॉलो कर रहे हैं इसको। कितने सारे लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं तुम। हाँ, आइडल टाइम अच्छा था, ओवर टाइम का ट्रीटमेंट अच्छा था, वो रिलेवेंट है। वो क्या है, तुम्हारा लेबर कॉस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करना है उसका बात हम कर रहे थे। सो आवर्स वर्क्ड इनटू व्हाट? आवरली रेट। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस। ये टाइम वेजेस हो गए, जाने दो, पास होने का इसलिए करो। ओके, बाय द वे, अभी 2-3 एग्जाम पहले ये हाल से रोन आ गए, ऐसे 10 आइटम पकड़े थे इंस्टीट्यूट ने। एक तो आइटम वेजेस कैसे निकालता था? स्क्वायर रूट के हिसाब से। वेजेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। वर्कर्स तुमको ना छोड़ दिए ना, तुमने ऐसे फॉर्मूले लगा दिए तो। और कुछ भी कर रहे हैं यार, बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। और ये बोला तो मतलब भावनाओं को समझो, मेरे शब्द भूल जाओ। टोटल वेजेस कंप्राइजेस ऑफ नंबर 1 टाइम वेजेस। टाइम वेजेस आवर्स वर्क्ड इनटू आवरली रेट।
व्हाट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ठीक था. बेसिक कॉन्सेप्ट इज वर्कर का इफिशियंसी ज्यादा हो या वर्कर का इफिशियंसी कम हो, उसको एक सेंस ऑफ सेफ्टी मिलना चाहिए कि भाई मेरा इफिशियंसी बढ़ गया, मेरा इफिशियंसी कम हो गया, तो भी मुझे कुछ तो पैसा मिलेगा. बोनस इज बेस्ड ऑन इफिशियंसी. बोनस इज बेस्ड ऑन व्हाट? Efficiency. If your efficiency is more than 100%, then only you will get a bonus. Efficiency more than 100% मतलब, if whatever work you did, time required, that is standard hours for that was, let's say 70. 70 घंटे में काम होना चाहिए था और तुम निकले महान, तुमने 60 घंटों में ही वो काम खत्म किया विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी. That is important. 70 hours were standard hours. You did work in how many hours? 60 hours. So what should happen? You are a efficient worker. तो आपको क्या मिलना चाहिए? बोनस मिलना चाहिए. तो वो बोनस यहां पर मिलेगा. आपने 10 आवर्स सेव किए ना, तो हाल से बोलता है whatever hours are saved, hours into rate per hour multiplied by 50%. मल्टीप्लाइड बाय 50%. हालसे के हिसाब से हाफ ऑफ वेजेस सेव्ड इज अ बोनस. क्या बोला मैंने? हाफ ऑफ वेजेस सेव्ड इज अ बोनस. दिस इज टोटल वेजेस इनटू ब्रैकेट हालसे. हालसे एक बंदा है, उसका फॉर्मूला है. अब देखो, आपको भी मैं थोड़ा सा एक ट्रिकी बेसिक क्वेश्चन देता हूं. स्टैंडर्ड आवर्स कितने बच्चों? 70. वर्कर बहुत महान निकला, उसने एक्चुअल आवर्स 60 लिए. ये है मिस्टर नमो. और दूसरा एक वर्कर है, उसने लिया 80 आवर्स. दूसरा वर्कर है मिस्टर अमित, उसने 80 आवर्स लिए. ठीक है ना? सो रेट पर आवर. अब देखो कितना गंदा लगता है. रेट पर आवर ₹300. ₹300. हालसे के हिसाब से वेजेस कंप्यूट करो. अब देखो मिस्टर नमो के वेजेस क्या है? कौन इफिशिएंट है, नमो या रागा अमित? हु इज मोर इफिशिएंट? नमो इज मोर इफिशिएंट. कैसे नमो इज मोर इफिशिएंट? इट्स ओके, कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों. Standard hours is 70. Standard hours is 70. But नमो ने काम 60 घंटों में कर दिया, मतलब 10 घंटे उसने सेव किए. तो मिस्टर नमो, मैं फॉर्मूला क्या करूंगा? आवर्स वर्क 60 इंटू रेट पर आवर 300 प्लस हाफ ऑफ 10 आवर्स सेव्ड इंटू हाउ मच? 300. कितना मिलेगा टोटल? 19,500 सब कुछ करके ना. एंड मिस्टर अमित, अमित के लिए क्या करूंगा मैं? 80 आवर्स इंटू 300 प्लस 50% ऑफ 0. क्यों 50% ऑफ 0? उन्होंने आवर्स सेव ही नहीं किए, ओवर टाइम नहीं लिया, आवर्स सेव ही नहीं किए. वर्क स्टैंडर्ड आवर्स इज व्हाट? द टाइम दैट यू शुड हैव टेकन. Standard hours is the time that you should have taken, and actual hours is time that you have taken. Are you confused? Why? Who is more efficient, Namo या Amit? Who is more efficient? Namo. But उसका सैलरी कम है. उसका सैलरी कितना है? 19,500. इफिशिएंट आदमी का पैसा कम है. ऐसा कैसे हो गया? You should not compare total basis. यही तो मैंने बोला था आपको चैप्टर के शुरुआत में. Don't compare on total basis. You should compare on what? Per hour basis. This 19,500 Mr. Namo has earned in 60 hours, and this fellow has earned 24,000 in 80 hours. उसका per hour rate 300 है, इसका per hour rate 300 से ज्यादा है, 320. For worker comparison, you should compare per hour earning. You should not compare total. Are you clear? This was which formula? हालसे. तो हालसे ने क्या बोला? You will get a time wages which are hours worked into hourly rate plus
you will get a bonus. How much bonus will you get? 50% of hours saved into rate per hour. Are you clear? रोवन ने बोला मेरे को ये 50% वाला कंसेप्ट पसंद नहीं है, मेरे को जो बोनस का परसेंटेज है ना वो डायनेमिक देना है. डायनेमिक देना है मतलब वो चेंज होते रहेगा. सो रोवन वेजेस, क्या बोला मैंने? रोवन वेजेस इज इक्वल टू actual hours, that is hours worked, multiplied by hourly rate plus hours worked, ये तो सॉरी hours saved, ये सब कुछ सेम है बच्चों. रेट पर आवर ये सेम रहा कि नहीं? व्हाट इज दिस? hours saved into rate per hour. wages saved, those are wages saved by you. तो उसका कुछ परसेंटेज आपको बोनस मिलना चाहिए. वो क्या प्रोपोर्शन में मिलेगा? रोवन सेज नो 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 नो, इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ इफिशियंसी. आप बोले क्या बोला? रेसिप्रोकल ऑफ इफिशियंसी. अभी पहले इफिशियंसी क्या है वो समझ लेते. पहले नीचे आ जाओ. वर्कर की इफिशियंसी निकालनी है. दो तरीके हैं उसके. You can calculate efficiency on the basis of time or you can calculate on the basis of output. आप फॉर्मूला भूल जाओगे, मुझे मालूम है पक्का. एग्जाम तक क्या करने का, दिमाग नहीं लगाने का. देखो फॉर्मूला क्रिएट करने का है, बहुत सिंपल है. स्टैंडर्ड आवर्स आर 80, एक्चुअल आवर्स आर 72. वर्कर इफिशिएंट है या इनइफिशिएंट है? एफिशिएंट है. इफिशिएंट है मतलब अरे 72 आवर्स में उसने काम खत्म किया ना. जो काम 80 घंटे में होना चाहिए था उसने 72 में खत्म किया. तो इसका इफिशियंसी कितना आना चाहिए? 100 के ऊपर आना चाहिए. मैं करता हूं 72/80, आता है 90%. मतलब फॉर्मूला गलत है. तो क्या करना पड़ेगा? 80/72. 80/72 मतलब SH/AH आ गया फॉर्मूला. स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, SH अपॉन एक्चुअल टाइम AH. SH/AH is a formula for efficiency. Standard hours upon actual hours is a formula for efficiency. Standard hours are for actual output and based on output. इधर क्या है? उल्टा फॉर्मूला होता है. एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट. व्हाट इज स्टैंडर्ड आउटपुट? एक्चुअल आवर्स में कितना आउटपुट आना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड आउटपुट. आई रिपीट, एक्चुअल आवर्स में कितना आउटपुट आना चाहिए था. So standard output for what? Time worked. Standard output for actual hours. समझा करे? ये फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट. आउटपुट के टर्म्स में किया. तो अब मैंने अभी अभी क्या बोला? रोवन के फॉर्मूला में जो बोनस का परसेंटेज होता है वो रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल में उल्टा करने का. ये फॉर्मूला क्या था? SH/AH. तो इधर उल्टा लिखने का, AH/SH. आ गया रोवन का फॉर्मूला. तो भूल जाओ एग्जाम में बिंदास. एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो रिकलेक्ट करना पड़ेगा आपको. आप क्रिएट कर सकते ना. क्या बोला मैंने बच्चों? देखो टाइम वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा. हाल से और रोवन में फर्क किधर है? बोनस का परसेंटेज. हाल से फिक्स परसेंटेज रहता है. और एक प्रॉब्लम आता है, हाल से वियर एक उन्होंने बोला 50% नहीं आएगा. बोनस का परसेंटेज कैन वेरी फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 30 to 70%. प्रॉब्लम कितना मुद्दा आपने सिखाया नहीं, वो क्वेश्चन में प्रिंट किया रहता है इसलिए सिखाया नहीं. हाल से वियर वो परसेंटेज बोनस का दे देंगे 40%. लिख 40%, 50 की जगह पे वो देंगे 60%. लिख. एक कंपनी तुमको जिंदगी में मिलाना, मैं डिग्री छोड़ दूंगा बेटा पूरी दुनिया में. आज के तरीका, पुराना नहीं. ऐसा पेमेंट करता होगा ना, वर्कर्स छोड़ के देंगे ना वहां पे. आर यू कैन नॉट, इट इज शेमलेस. शेमलेस नहीं, शेमफुल टू से टू वर्कर, मिस्टर चिराग, you will be paid at the rate of 300 rupees per hour for your services. बॉस मैं तो वहां पर ही बजाऊं वर्कर को, मतलब एम्प्लॉयर को. और हम ये बुक में प्रिंट करके पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग बनना चाहते हैं. मोदी जी देखिए जरा क्या चल रहा है आपके राज में. सो टाइम बेस्ड एक्चुअल आवर्स. And this is for 75 years this is going on here. I can understand initial years. चलो दिमाग नहीं था लोगों के पास, इतना स्मार्ट नहीं बन रहे थे हम. In 2023 you are teaching this to students.
टाइम बेस, आउटपुट बेस एंड ये प्रीमियम बोनस सिस्टम आ गया, इफिशियंसी हो गया। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एम्प्लॉय टर्नओवर। ये बहुत सिंपल होता है। यू शुड बी एबल टू गेट, इट इज बेसिकली चेंजेस दैट हैपन इन वर्कफोर्स। आपके वर्कफोर्स में क्या होता है, चेंजेस होता है। सो हम क्या करेंगे, ओपनिंग वर्कर्स लिखेंगे। ओपनिंग वर्कर्स कुछ तो रहेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। फिर एड एडिशंस। वर्कर ऐड क्यों होते हैं, दो रीजंस की वजह से होते हैं। कुछ लोग छोड़ के गए थे, उनके जगह पे आपने नए लोग लिए, तो एडिशंस ड्यू टू रेजिग्नेशंस, और एडिशंस फॉर रिप्लेसमेंट, सिंपल लैंग्वेज बोल दो, फॉर रिप्लेसमेंट। तो जो लोग छोड़ के गए उनके जगह पे आपने लोग लिए। और दूसरा एडिशन किसकी वजह से होता है बच्चों, फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की वजह से एडिशन हो गया, समझा। ये हो गया आउटर कॉलम, ये हो गया सब टोटल तुम्हारा। फिर लेस क्या हो गया, सेपरेशंस। लोग तुमको छोड़ के गए, क्यों छोड़ के गए, लोग तुमको छोड़ के क्यों गए, आर की वजह से, आर रेजिग्नेशंस, रिट्रेंचमेंट एंड रिटायरमेंट। वर्कर ने रेजिग्नेशन दे दिया, तुमने वर्कर को निकाला और वर्कर का टाइम हो गया, तो आप ये सब लोग, देयरफॉर यू गेट अ क्लोजिंग वर्कर्स। ये हो गया तुम्हारा एम्प्लॉय रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक बार ये स्टेटमेंट आ गया ना, तो पूरा लेबर टर्नओवर के जो भी फॉर्मूलाज है लल्लू है, ये तुमको समझना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकालते हैं, ए और ये नीचे का है बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ये आ गया एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो उसके हिसाब से हम अलग अलग रेशोज निकालेंगे। लेबर टर्नओवर पे दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर वन, अ क्वेश्चन विच आस्क्स यू कैलकुलेशन ऑफ वेरियस लेबर टर्नओवर रेट्स, एंड द क्वेश्चन टू, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। आई रिपीट, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए थे। पहले लेबर टर्नओवर रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो पहले फर्स्ट टाइप एक्सप्लेन करो, रिप्लेसमेंट मेथड। अरे अरे अरे, इसने माती खाया, उसने ऊपर का फॉर्मूला कॉपी किया। रिप्लेसमेंट मेथड फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। सब डिनोमिनेटर सब जगह में सेम रहेगा, न्यूमरेटर अरे नाम में फॉर्मूला लिखा है, रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। सेपरेशन मेथड, नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल, दिस पेरोल। फ्लक्स मेथड, फ्लक्स इज अ कॉम्बिनेशन। सेपरेशन मेथड का अगर आंसर आ गया 4%, इसका मतलब क्या है, 4% ऑफ एवरेज वर्कर्स यू हैव रिप्लेस्ड। बट सेपरेशन का आंसर आ गया 12%, मतलब 12% लोग छोड़ के गए। इसका ब्यूटीफुल मतलब मालूम है क्या है, 12% लोग छोड़ के गए, लेकिन 4% लोगों को ही तुमने रिप्लेस किया। मतलब आइदर ओल्ड वर्कर्स वेर इनएफिशिएंट और न्यू वर्कर्स आर more efficient, or you have reduced your quantity production, you have reduced your volume of output, or you are yet to hire the workers। मतलब कुछ भी हो सकता है ना। 12% लोग छोड़ के गए, लेकिन रिप्लेसमेंट 4% ही हुआ, बाकी 8% गए किधर, कुछ भी हो सकता है। दैट रीजनिंग यू नीड टू डू। वी आर नॉट डूइंग रीजनिंग बिकॉज वी आर टंट लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट है हम, तो हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, रीजनिंग लॉजिक्स नहीं लगाएंगे हम, वो आप खुद लगा सकते हो, किसी ने आपको रोका नहीं है। फ्लक्स मेथड इज अ कॉम्बिनेशन। सो नंबर ऑफ, फ्लक्स मेथड के दो वर्जन है, एग्जाम में दो अलग अलग आंसर लिखना फ्लक्स के। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब आर प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड, मतलब क्या नहीं लिया, एक्सपेंशन की वजह से जो वर्कर ऐड हुए ना, वो नहीं लिए मैंने न्यूमरेटर में, वो नीचे लिए। फ्लक्स मेथड अल्टरनेटिव रेशो, उसको बोलते हैं एक्सेशन, फ्लक्स इनटू ब्रैकेट एक्सेशन। ये जो एक्सपेंशन के वर्कर्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन प्लस रिप्लेसमेंट, दोनों जो एडिशन हुए ना, ये एडिशंस को हम बोलते हैं एक्सेशंस।
पहला जो फ्लक्स का आंसर था उसमें मैंने क्या लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड लिया। अभी मैं नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस नहीं ले रहा हूं, सिर्फ सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग ड्यू टू एक्सपेंशन। मतलब मैंने क्या लिया, टोटल सेपरेशन लिया एंड टोटल एडिशन लिया। बच्चों फ्लक्स इज नथिंग बट टोटल चेंज। व्हाट इज अ फ्लक्स? टोटल चेंज इन योर वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। समझा गया? तो कितने फॉर्मूला किए हमने? 3, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड, एंड द लास्ट वन इज इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट। आप बोलेंगे मतलब दिस इज अ थर्ड क्लास थिंग दैट आई सीन इन द आईसीएस मॉड्यूल। डेटा इज गिवन फॉर 1 क्वार्टर। एक क्वार्टर का रिप्लेसमेंट रेट मेथड का आंसर आया 4%। 4% is answer of 1 quarter. Question says calculate annual labor turnover rate 16%. We assume same trend in all the quarters. It is not practical to assume that the change in workforce in 1 quarter or in 1 month will remain same throughout the year. तो हम ये कैसे निकालेंगे मालूम है क्या? क्वार्टरली रेट दिया है ना, if the quarterly rate is given, quarterly rate divided by 90 into 360 मतलब into 4 करोड़ यार। इक्विवेलेंट एनुअल रेट मतलब हाफ ईयरली रेट निकाला तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्वार्टरली रेट दिया तो मल्टीप्लाई बाय 4, मंथली रेट निकाला तो मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये आते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन जहां पर ये लेबर टर्नओवर के रेट्स निकालना है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है जो मेरे को एक्सपेक्टेड है, कैलकुलेट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू लेबर टर्नओवर। What happens due to labor turnover? 2 things happen. There are out of pocket cost. Impact of labor turnover. 2 चीजों पे होता है। तो लेबर टर्नओवर ऑन व्हाट? इंपैक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर ऑन प्रॉफिट। मैंने एक क्वेश्चन रखा है उसमें एडिशनल क्वेश्चंस के लिए। 2 चीजों पे इंपैक्ट होगा बच्चों लेबर टर्नओवर का। नंबर 1 कॉस्ट पे। अब बोलेंगे कौन से कॉस्ट? जो वर्कर्स छोड़ के जा रहे हैं ना उनको आपको पैसा देना पड़ेगा, रिट्रेंचमेंट का कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है, रिटायरमेंट के कुछ अमाउंट पेएबल है तो वो देना पड़ सकता है, प्लस आपको नए वर्कर्स रिक्रूट करने, उनका इंटरव्यू, उसके लिए एडवर्टीजमेंट, उनका ट्रेनिंग का खर्चा, ये सारा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो जाता है आपके जेब से। सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, दूसरा एलिमेंट है। ये तो टोटल लेना होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है। दूसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट है? लेबर टर्नओवर की वजह से आपने जो नए वर्कर्स हायर किए उनकी इफिशियंसी कम थी, इसलिए आपका आउटपुट कम प्रोड्यूस हुआ। वो जो कम आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसके ऊपर आपने प्रॉफिट लॉस किया। you could had there been no labor turnover you could have produced 50,000 units, but due to labor turnover you produce only 45,000 units. तो आपने कुछ आवर्स लॉस किए या कुछ फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन लॉस किया। सो दैट इज प्रॉफिट लॉस्ट। हम क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस ये क्या है? अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ प्रॉफिट इज लॉस्ट। दैट्स इट। तो आपको चैप्टर याद रखने के लिए बच्चों 6 चीजों पे याद रखना है। पहला क्या था? ये थियरी, ये तो जनरल था। 6 चीजें इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़नी है। आइडल टाइम, आइडल टाइम के ऊपर 1-2 क्वेश्चन करना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। दूसरा ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट। Treatment is of overtime premium. Overtime premium can be done due to 3 reasons. Request of a customer, abnormal reasons, 4 reasons. Request of customer, charge it to that job. Abnormal reason, charge it to costing P&L. Fault of a particular department are done irregularly. Treat premium as a overhead cost. And overtime is done regularly. Regularly किया तो क्या करोगे? Inflate the wage rate itself. याद है क्या? फिर wage payment systems. आइडल टाइम, ओवर टाइम, वेज पेमेंट सिस्टम, उसमें हालसे एंड रोवन। उसके लिए आप क्या करना? कैलकुलेशन करना। किस चीज का? इफिशियंसी का। रोवन में जो बोनस का परसेंटेज है इज एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ इफिशियंसी। इफिशियंसी एसएच अपॉन एच था तो बोनस उल्टा था। एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। समझा करे? तो बस उतने टाइम का क्वेश्चन आएंगे। 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, बस इतना छोटा सा चैप्टर है। So you should just go through some questions. I will share this PDF as well as other questions PDF on your Telegram group. जो आपके पास regular notes रहेंगे तो उसमें से कुछ questions go through करना. That's it, right? We will be kickstarting with overheads. Overhead, activity based costing, standard costing. ये थोड़े डिटेल में लूं
क्योंकि ये चैप्टर आपको सताएंगे। मेरे को लगता नहीं मटेरियल लेबर सताएगा। मटेरियल लेबर क्या किया मैंने, आपका टाइम सेव किया उसमें। बट नींद खराब करने वाले चैप्टर कौन सा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ओवरहेड। बट आप उनको अगर अच्छे से, हमने बहुत डिटेल में किया है, आपको जस्ट रिकलेक्ट होना पड़ेगा। करेंगे राइट? टुमारो वी डू ओवरहेड्स।